Hello everyone. I hope you have enjoyed the last video on basic English, that is about tense. We had started on the last video. Today we are going to start the second part of the tense that which we are going to discuss today, that is past tense, and later on that is future. So in last video we have read about what is tense. This is we had discussed, and we had also discussed that how we can identify the various aspects of present tense. I hope you have understood it well, and really I have got tremendous response from your side. Thank you for that. So today we are going to know that what is past tense and how it can be easily identified if you are trying to find out a statement which is given in the past, how you can identify it, or how you can find any error, or how you can make it correct. So this is all we are going to deal with this past tense. So अब जैसा हम लोग जानते हैं कि टेंस के अंदर प्रेजेंट टेंस के बाद पास्ट टेंस को हिंदी में हम लोग भूतकाल कहते हैं, और भूतकाल को रिलेट करने का मतलब ये होता है कि जो काम जिस कार्य का समय बीत चुका है, यानी कि if you want to know a one line definition of past tense, so we can say that action which took part, which was done in past, which was done. So जो भी काम हो चुका होता है, जिस काम को हम भूतकाल में कर चुके होते हैं, उस स्टेटमेंट को हम रिलेट करते हैं पास्ट टेंस के अंदर. Now we are having the various aspect of past tense as we had read in the present, that is past. First is past indefinite. Past indefinite tense. The second one is continuous. The third one is perfect. And fourth one is perfect continuous. So इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरह से हम किसी भी स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो स्टेटमेंट इंडेफिनिट में है या कॉन्टिन्यूअस में है या परफेक्ट में है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है. तो स्टार्टिंग में पास्ट इंडेफिनिट अगर हम स्टार्ट करें पास्ट इंडेफिनिट से, तो हम देख सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट अगेन इंडेफिनिट रिलेट्स टू द एक्शन विच टाइम इज नॉट डेफिनिट हैपनिंग इन पास्ट बट द टाइम इज नॉट सर्टेन, टाइम इज नॉट डेफिनिट. सो अगर हम इसके लिए सिंटेक्स लिखें कि व्हाट सिंटेक्स आई शुड राइट फॉर इट, देन we can write it like that: subject, then V2. V2 means second form of verb, and then if there is any object, we need to add an object. Note it here that this is the only form of a tense where the second form of verb is used. तो कुछ चीज़ों को जो मैं अपने वीडियो में बताता जा रहा हूँ कि इसको आप नोटिफाई कर लें, अपने दिमाग में एकदम फिट कर लें कि अगर आपसे पूछा जाए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ इस्तेमाल होता है, you can straight away you can give the reply that the second form of verb is used in the past indefinite tense. Now for example, if we write an example subject, suppose I am writing subject as I as a subject, then I wrote, written, you leave it about I wrote a letter. So this is the example of past indefinite tense, that I wrote a letter. Again, you can understand it like that: it is affirmative or positive sentence. Affirmative. So for negative or interrogative, we need to use some other thing to make it in or convert it in. Suppose I have to convert it negative, then what would be the syntax? Subject plus did not, and then V1, and then object. Subject plus did not plus V1 then object. It means what? If I want to convert this affirmative sentence of past indefinite in the past negative sentence, indefinite negative sentence, then we can write it like that: I did not write a letter. This is a kind of conversion you can make it from past indefinite affirmative to past indefinite negative.
सो व्हाट आई मीन टू से एग्जैक्टली, मैं क्या बताना चाहता हूं आपको कि जब आप निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो आपको वहां पर डिड का इस्तेमाल करना होता है, और अनकेयर्ड कि वो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, डिड का इस्तेमाल सबके साथ किया जाएगा, चाहे वो आई हो, चाहे वो यू हो, चाहे वो वी हो, चाहे वो दे हो, किसी भी सिंगुलर प्लूरल सबके साथ आई का इस्तेमाल किया जाएगा। और वहां पर जब डिड लगेगा तो ऑलवेज, अगेन यहाँ पे मैं एक बात बताऊं आपको, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिफाई कि जब भी हम डिड लगा दें तो वहां पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कई बार यह मिस्टेक बहुत से स्टूडेंट्स हमने देखा है कि वो करते रहे हैं, या एरर फाइंडिंग में इसकी वजह से उनको दिक्कत हुई है, क्योंकि ये बात उनके दिमाग में नहीं हुई। तो व्हाट आई मीन टू से, जब आपने डिड लगाया तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लग गया। नाउ सपोज इफ यू वांट टू मेक इट इंट्रोगेटिव, देन व्हाट, यू जस्ट पुट डिड आउटसाइड, डिड आई राइट अ लेटर, दिस इज इंट्रोगेटिव। व्हाट यू डिड एग्जैक्टली हियर, कि आपने क्या किया, उस डिड को जो विच इज एक्टिंग हियर एज अ हेल्पिंग, उस डिड को आपने सिंपली बाहर लिया, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एज आई हैव टोल्ड यू, जब भी डिड लग जाएगा तो उस स्टेटमेंट में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो डिड आई राइट अ लेटर, तो आपको मैंने पास्ट इंडेफिनिट के तीनों तरह के स्टेटमेंट्स बनाने के लिए बताया। तो आप जो डेली यूज ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग होता है ना, इसमें इन चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है, that how we can speak, how we can write. So this is the basic of either you want to speak English, अगर आप बोलना भी चाहते हो ना, तो it is the basic learning of the English, that when you knew it, that how and when it is used and in which situation, what type of helping verb and what type of subject used with the other things. So it is a very important thing to know. So this is I had discussed about the past indefinite. तो past indefinite पे मैंने कहा कि the time of action is not definite, so that is why it is called past indefinite. I wrote a letter, अगर आपको लिटरली इसको हिंदी में कहा जाए तो क्या कहेंगे, मैंने एक पत्र लिखा या लिखा था, तो मैंने एक पत्र लिखा था, the time is not looking to be definite, so that is why it will be treated as past indefinite. So I hope you understood about it. Now अब आप दूसरे पार्ट में चलें, दूसरा एस्पेक्ट उसका है जो देखा जाए। दूसरा एस्पेक्ट पास्ट टेंस का है, वो है कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वी फाइंड एन एक्शन वाज रनिंग इन पास्ट, यानी कि हम इस फॉर्म में क्या पाते हैं कि कोई काम का चलता रहना हम पास्ट में पाते हैं, यानी कि भूतकाल में पाते हैं, यानी कि वर्तमान में वो काम नहीं हो रहा होता है। समझिएगा इस बात को कि द वर्क वाज गोइंग ऑन इन पास्ट। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आपको सिंटेक्स सबसे पहले आप जाने, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए आपको हाईलाइट करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को रिकॉग्नाइज करना है, तो क्या करेंगे, सिंटेक्स आपका होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V1। और अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी कॉन्टिन्यूअस लगेगा तो आप सिंपल सी बात दिमाग में हमेशा रखिए कि जब भी कॉन्टिन्यूअस होगा, नो मैटर इट इज प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो आपको वहां पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगा के ही रखना है। द वॉज का यूज आप करते हो ही सी इट सिंगुलर के साथ, एंड वर्ब का इस्तेमाल आप करते हो प्लूरल के साथ। नाउ हियर वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि एट सम प्लेसेस यू फाइंड दैट आई का जो यूज होता है, कभी लोग वर्ब भी लगा देते हैं उसके साथ, कभी वाज भी लगा देते हैं। जैसे हम आपसे पूछे वेयर यू आर गोइंग, यू जस्ट रिप्लाई दैट आई वाज गोइंग टू स्कूल और आई वाज गोइंग टू मार्केट, तो आप आई के साथ वाज भी लगा देते हैं या वर्ब भी लगा देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस। तो ये कोई डिस्प्यूट का विषय नहीं है, बट एक्सेप्शनल एक केस है, ये कहीं कहीं लगा होता है, बट लिटरली अगर आप ग्रामेटिकली चाहें तो आप वहां पर आई के साथ, आई को वाज के साथ ही लगाएं, वहां पर वर्ब का इस्तेमाल ना करें। तो सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब प्लस V1 प्लस ing। नाउ जस्ट राइट अ स्टेटमेंट अबाउट द पास्ट कंटीन्यूअस, देन व्हाट विल बी द स्टेटमेंट। सपोज आई एम राइटिंग मोहन was playing a match. So if you see the syntax here, Mohan is what? It is subject, was is helping verb, again Mohan is similar, तो इसलिए was लगाया गया, playing verb को खेलना verb है, a आर्टिकल का इस्तेमाल है और मैच ऑब्जेक्ट। तो आप ये देख सकते हो कि इस स्टेटमेंट में मोहन एक मैच खेल रहा था, यानी कि दैट मैच वाज ऑन इन पास्ट।
सो दिस इज रिलेटेड टू द पास्ट कंटिन्यूअस। अगेन इसमें निगेटिव बनाना बहुत आसान है, इसमें ज्यादा आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना। सब्जेक्ट के साथ वाज वर जो अकॉर्डिंग टू द आपका सब्जेक्ट है लगाइए, उसके साथ नॉट जोड़ दीजिए, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, यानी कि V1 प्लस ing प्लस इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट यू कैन यूज द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस के ऊपर फिर से मैं आपको ब्रीफ कर दूं, पास्ट कंटिन्यूअस क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस में वी फाइंड दैट एन एक्शन वाज रनिंग इन द पास्ट, दैट मींस कि कोई कार्य पास्ट में हो रहा था, यानी कि बीते हुए समय में हो रहा था। ऐसे स्टेटमेंट को हम बनाएगा तो दैट स्टेटमेंट विल बी ट्रीटेड अंडर द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब इसके बाद हम लोग का जो थर्ड इसका एस्पेक्ट है वो है पास्ट परफेक्ट। अगेन यहाँ पे आपको हम एक चीज बता देना चाहते हैं कि कई बार प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है, नॉट ऑन द चिल्ड्रन बट मैंने कई बार प्रोफेशनल्स को भी देखा है कि वो उसमें मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए नहीं कि उनको आता नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि कई बार एट द टाइम ऑफ रिप्लाइंग उनके दिमाग में वह कंफ्यूजन आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं है, मालूम होता है कई बार, क्योंकि टेंस ऐसी चीज है जो शुरू से पढ़ाई जाती है। आजकल तो क्लास सेकंड क्लास थर्ड से बच्चे पढ़ते हैं, बट अभी इंटर तक के बच्चों से पूछ लीजिए, उसके ऊपर भी कहीं पूछ लीजिए व्हाट इज टेंस, तो कई बार लोग जानते हुए भी उसको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो दैट नॉलेज इज हैविंग नो मीनिंग इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिप्लाई ऑन अ राइट टाइम। किसी भी जानकारी का सही इस्तेमाल तभी होता है जब आप उसको सही समय पे डिलीवर कर पाते हैं। तो वो क्या बात इंपॉर्टेंट है इसमें, देखिए पास्ट परफेक्ट। अब इसको जरा सा हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे प्रेजेंट के साथ, जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था प्रेजेंट परफेक्ट। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो आपके दिमाग में ये बात हमेशा के लिए सेट होगी and you will be able to understand it quite easily that why it is treated as past and why it is treated as a present. So present perfect में हम लोगों ने क्या सीखा था कि सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं हैज और हैव प्लस बी थर्ड। यहाँ पे फिर मैं बता दूंगा आपको कि जब भी आपको परफेक्ट की बात आएगी तो आपको वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट फॉर्म हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट फॉर्म हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो। Now simultaneously if you see the syntax of past perfect, तो past perfect का syntax क्या बनेगा, subject as it is in the sentence, उसके बाद यहाँ पे हम had का इस्तेमाल करते हैं, had HAD plus V third and then object. Now I am writing the statement, one for present perfect and other for past perfect. You just see it. I have done my assignments. Now here Ram had done his assignments. Now what is the difference? The difference in present perfect, why it is present perfect? Why? Because so many times the people used to ask कि सर ये भी काम हो चुका है, इसमें भी काम पूरा हो चुका है, तो ये पास्ट हो गया नहीं। So the action which completed in present, the action which completed in present can be treated as present perfect, and action which was done in the past is treated as the past perfect. So this is the basic difference. तो यहाँ पर राम had done his assignment, मतलब राम अपने काम को कर चुका था, उसकी असाइनमेंट्स कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पे थी का शब्द आ गया, मतलब उसने पहले ही कर लिया था। और यहाँ पे इसने लिखा अगर आई हैव डन माई वर्क असाइनमेंट, इट मींस मैंने अपना कार्य कर लिया है, यानी कि इट हैज बीन कंप्लीटेड रिसेंटली, यानी कि ये तुरंत अभी खत्म हुआ है। तो द एक्शन व्हिच इज जस्ट फिनिश्ड दैट विल बी ट्रीटेड एज प्रेजेंट परफेक्ट, एंड द एक्शन व्हिच वाज फिनिश्ड इन द पास्ट और द अर्लियर दैट वाज, फॉर एग्जांपल अगेन एक और सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। जैसे आपका घर अगर आपके पिता ने बनवाया है तो आप क्या कहते हैं, दिस हाउस is built by my father। ये पैसिव में हमने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं एक्टिव में, my father has built this house। ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, क्यों? क्योंकि आप किसी को बता रहे हैं कि यह घर मेरे पिता ने बनवाया है, क्योंकि ये रिसेंटली बना है तो आपने इसको कहा कि ये घर मेरे पिता ने बनवाया है। लेकिन अभी आपको लिखना हो कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया तो था लिखते हैं, तो क्या कहते हैं, शाहजहां है बिल्ट द ताज।
अब यहाँ पे द क्यों लगा आर्टिकल द का इस्तेमाल, क्योंकि इट इज वन एंड ओनली हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड फॉर इट्स काइंड। तो हम आर्टिकल का जब वीडियो बनाएंगे उसमें आपको हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ए एंड द का इस्तेमाल। तो यहाँ पे शाहजहां हैड बिल्ट द ताज, शाहजहां ने ताज बनवाया था क्योंकि पास्ट में हो चुका था। तो दैट असाइनमेंट वाज डन इन द अर्लियर, सो दैट इज व्हाई इट इज ट्रीटेड एज द पास्ट परफेक्ट। और जब आप अपने फादर के लिए कहते हैं कि इसने उन्होंने घर बनवाया था, तो वो ट्रीट होता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। अब इसमें अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो सिंपली आप नॉट ऐड कर देते हैं, यानी कि जो सिंटेक्स आपका है वहीं पर अगर आप नॉट और ऐड कर दें तो दैट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव से वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली नॉट लगा देना है। सो दिस इज द वे वी कैन आइडेंटिफाई एंड राइट अ करेक्ट स्टेटमेंट इन द पास्ट परफेक्ट। सो नाउ let me come to the next, that is the last aspect of the past, that is past perfect continuous. Again I would like to make you remind the last video जहाँ पे हम लोगों ने present perfect continuous के बारे में पढ़ा था। present perfect continuous हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका नेचर क्या होता है। तो नेचर हमने बताया था कि इस नेचर में ये पाया जाता है कि that some part of the particular work is being done and remaining part is still continuing, so that part will be treated if it is happening in present, तो उसको हम लोग present perfect continuous कहते हैं, और अगर वही past में होगा तो उसको past perfect continuous कहेंगे। अगेन हम स्टार्ट करेंगे सिंटेक्स से, किसका सिंटेक्स क्या बनता है, यानी कि इसको किस वर्ड स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर में हम बनाएंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। सब्जेक्ट के साथ लगा देते हैं हैड बीन प्लस, मैंने आपको बार बार मैं याद दिलाता हूँ, फिर याद दिला रहा हूँ कि जब आप कभी भी कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, तो उसके बाद आप वर्ब लगाएंगे, उसके साथ आईएनजी ऐड करेंगे, प्लस अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और अगेन टाइम की इंपॉर्टेंस यहाँ पे भी होगी, जिसके लिए सिंस ऑफ और का इस्तेमाल किया जाता है, और सिंस ऑफ और का इस्तेमाल मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, तो आप चाहें तो वहाँ से फिर से इसके बारे में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लिख करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे रीटा had been doing this work since morning। रीटा यह काम सुबह से ही कर रही थी। तो यहाँ पे पास्ट का जो सबसे आसान तरीका पास्ट को पहचानने का क्या है कि वहां पे था, थी या थे, या इंग्लिश में वाज, वर, हैड या डिड। ये तो ऐसे टूल्स हैं जिससे आप आसानी से पहचान लेंगे कि पास्ट का वो पार्ट है पहली चीज, और फिर ये लगा हुआ है तो पास्ट के किस एस्पेक्ट की बात कर रहा है। ये हम इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं कि परफेक्ट की बात कर रहे हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो ये इसके क्विक फॉर्मूलाज हैं जिसकी वजह से आप तुरंत इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस स्टेटमेंट में वाज, वर, हैड या डिड लगा है तो सिंपली वो स्टेटमेंट या वो किस पे जाएगा, वो पास्ट टेंस में जाएगा पहली चीज, और अकॉर्डिंगली रूल्स को अप्लाई करके हम बता देंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट में है या पास्ट कंटिन्यूअस में है या पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। सो इट इज अ description about, it is a description which I have given you, that about past tense, and past tense में ये सारी चीजें आपको मैंने बताई जिसमें indefinite, continuous, perfect और perfect continuous है। This is all about past tense।